Good afternoon, students. Today I have come with the first chapter of macroeconomics of class 12 economics CBSC. And name of this chapter is national income and related aggregates. And I have divided this chapter into two parts, part A and part B. So today I have come with my first video of part A of this chapter, that is some basic concepts of macroeconomics. So firstly we'll see that what we are going to study in this part A of first chapter of macroeconomics, that is some basic concepts of macroeconomics. So in this chapter we are going to study first of all the meaning of macroeconomics. What is macroeconomics? Then we'll study the macro level classification of an economy, then types of goods, then we'll study about investment, which is also known as gross investment, or it is also known as gross domestic capital formation. Then we will study about net investment, which is also known as net domestic capital formation. Then we'll study the concepts of stock and flow, and lastly we'll study about the circular flow of income. So these are the contents of this chapter. So first of all I'll start with the meaning of macroeconomics. Means what is macroeconomics. And in class 11 when we studied chapter 1 of microeconomics, that was introduction. In that, in detail, we studied about microeconomics and macroeconomics both, and then we studied the differences between microeconomics and macroeconomics. In that topic I in detail in class 11 explained the meaning of macroeconomics. So in this chapter we have to study about macroeconomics only. In macroeconomics we don't have to study microeconomics in this chapter. We have to study only macroeconomics, so it is a kind of revision for us. Macroeconomics. So in class 11, as I told you, that macroeconomics is that branch of economics which studied about studies about macroeconomic variables. It is that branch of economics which studies about macroeconomic variables. जिस इकोनॉमिक्स की ब्रांच में हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स स्टडी करते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जिस ब्रांच में माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम स्टडी करते हैं MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, उस ब्रांच को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू मे आस्क दैट व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. लुक, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल. ऐसे वेरिएबल्स जिनमें चेंज होने के कारण पूरे इकॉनमी में एक साथ उसका इफेक्ट पड़ता है. आइदर पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट, दोनों हो सकता है. मीन्स इफ एनी वेरिएबल इज अफेक्टिंग the entire economy either positively or negatively, that will be known as macroeconomic variable. For example, national income. If national income is increasing, it will affect the entire economy positively, because if national income is increasing, then living standard of people will increase and the level of economic development will increase. So same will happen in case of GDP. If GDP is increasing, national income will increase and there will be economic development. So these two will affect the entire economy positively. If there is inflation, then what will happen? Rapid increase in price of goods and services, and because of this the aggregate demand overall demand of goods and services may decrease, and because of that unsold stock of producers may decrease, and producers may decrease the production, and it may decrease the GDP and national income. So inflation generally it affects the entire economy adversely. Same thing as deflation, we have already studied in detail in chapters money and banking, as well as in chapter foreign exchange rate. About inflation and deflation we have studied uh, in detail. Then fiscal deficit in chapter government budget I have already explained. Fiscal deficit shows the entire borrowings and liabilities of government. So if borrowings and liabilities of government are increasing, it means government is uh, borrowing money from internal sources as well as from external sources also. And it will, if government is borrowing more and more money from external sources, it will increase the dependence of country on foreign countries, and because of that foreign countries may interfere in the domestic economic policies of the country, and which may affect the social welfare of the country adversely. Money supply, as we know that if there is excessive money supply, it create the
it creates the problem of inflation. If there is scarcity or excessive decrease in money supply, then it may create the problem of deflation. Aggregate demand means total demand of goods and services. If total demand of goods and services is increasing, then producers will increase the production. Aggregate supply, if aggregate supply of goods and services are increasing, then because of excessive supply in country, the prices may decrease of goods and services. So this will also affect the entire economy. Unemployment and poverty. Unemployment, if there is unemployment, there is poverty, then social welfare of the country will be low. So these will also affect the entire economy. So these are the examples of those variables which will affect the entire economy. That is why these are known as macroeconomic variables, and these macroeconomic variables are studied in macroeconomics. So this is macroeconomic macroeconomics, which we are studying national income accounting and national income and related aggregates and some basic concepts of macroeconomics. We are studying all these things. So these are the part of macroeconomics. So national income, GDP, inflation, deflation, fiscal deficit, money supply, aggregate demand, aggregate supply, unemployment, poverty. These things we have to study in macroeconomics. नेक्स्ट थिंग इज़ वर्ड मैक्रोस. कहाँ से मैक्रो टर्म आया है? दिस मैक्रो टर्म कहाँ से डिराइव करा गया है? मैक्रो. सो वर्ड मैक्रो हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज. एंड in class 11 I have already told you this thing, that macroeconomics is also known as income and employment theory. इसको जैसे microeconomics is also known as price theory. Likewise, macroeconomics is also known as income and employment theory. Then there is a term macro paradox. What does it mean? Micro and macro paradox का मतलब क्या हुआ है हमको पढ़ना. पैराडॉक्स मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास. यदि किसी चीज़ में विरोधाभास है, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स. मैक्रो पैराडॉक्स क्या है? It is that situation in which a decision which is correct at micro level may be incorrect at macro level. मतलब ऐसा एक डिसीजन जो इंडिविजुअल के लेवल पे करेक्ट है, इंटायर इकॉनमी के लेवल पे वो इनकरेक्ट हो सकता है. या ऐसा कोई डिसीजन जो एक इंडिविजुअल को पॉजिटिवली अफेक्ट करे, इंटायर इकॉनमी को दैट डिसीजन में अफेक्ट नेगेटिवली ऑल्सो. तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया. एक डिसीजन जो माइक्रो लेवल पे करेक्ट है, मैक्रो लेवल पे इनकरेक्ट हो सकता है. एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं. If an individual is increasing his savings, it is correct decision for his future security. एक इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स को, जो इनकम अर्न कर रहा है उसमें सेविंग वो इंक्रीज़ कर रहा है. वो ही इज़ सेविंग मोर अमाउंट ऑफ मनी. तो जितना ही पैसा वो बचाएगा उसका फ्यूचर उतना ही ज़्यादा सिक्योर रहेगा. वो पैसा ही विल यूज़ इन फ्यूचर इफ़ ही रिक्वायर दैट अमाउंट ऑफ मनी for to solve any problem or to purchase anything. If anything is required to be purchased in future, if that individual is increasing his savings, means he will be having more amount of money in future, so his future will be secured. It is a correct decision at micro level. ये माइक्रो लेवल डिसीजन है क्योंकि इंडिविजुअल अपने लेवल पे ले रहा है. लेकिन ये मैक्रो लेवल पे रॉन्ग डिसीजन प्रूव हो सकता है. कैसे? इफ़ ऑल इंडिविजुअल स्टार्ट्स टेकिंग सेम डिसीजन, यदि कंट्री के सारे लोग यही डिसीजन लेने लगे, means all the individuals of the country are suppose increasing their saving levels, then overall expenditure in economy will decrease. तो इकॉनमी में सेविंग्स लोग ज़्यादा करेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर लोग क्या करेंगे? कम करेंगे. तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर इकॉनमी में डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज. एज वी नो दैट एक्सपेंडिचर क्रिएट्स द डिमांड. तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल डिमांड मतलब टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकॉनमी में क्या हो जाएंगे? डिक्रीज. एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट का मतलब टोटल डिमांड, मतलब हम जानते ही हैं. तो टोटल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं डिक्रीज हो जाएगा. इससे तब क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज. जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम कर देंगे, विच विल डिक्रीज द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. इससे इकॉनमी का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगा. तो इट इज़ एन इनकरेक्ट डिसीजन एट मैक्रो लेवल. तो ये जो सेविंग्स का डिसीजन है माइक्रो लेवल पे इट इज़ करेक्ट, इट इज़ फेवरेबल, बट एट मैक्रो लेवल, at the level of entire economy, it is an incorrect decision. ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स.
नाउ मैक्रो लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी, यदि किसी कंट्री का या किसी इकोनॉमी का मैक्रो लेवल क्लासिफिकेशन मतलब इंटायर इकोनॉमी को सेक्टर्स में क्लासिफाई करना चाहते हैं आप, तो इंटायर इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब आप कहोगे कि इससे पहले तो हम किसी भी इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन 3 सेक्टर्स में पढ़ते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, या एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ये हमने क्लासिफिकेशन किसी भी इकोनॉमी का अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, सही बात है आपने पढ़ा था। लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ नॉट द मैक्रो लेवल क्लासिफिकेशन। वो इंटायर इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, ये जो क्लासिफिकेशन था एंटायर इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये केवल प्रोडक्शन सेक्टर का क्लासिफिकेशन होता है। किसी भी कंट्री के जो 4 सेक्टर्स होते हैं मैक्रो लेवल पे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, इसमें से प्रोडक्शन सेक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, या प्रोडक्शन सेक्टर को हम फर्दर 3 सब सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर को कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर इन विच प्राइमरी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड सेकेंडरी सेक्टर is that part of production sector in which secondary goods are produced, and tertiary sector is that part of production sector in which services are produced or services are generated। तो इसमें प्राइमरी गुड्स लाइक एग्रीकल्चरल गुड्स, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब होता है। और सर्विस सेक्टर में सर्विसेज जनरेट होती हैं, जैसे एजुकेशनल सर्विसेज या ट्रेनिंग सर्विसेज या इंफॉर्मेशन सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जनरेट होती हैं टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर। ये प्रोडक्शन सेक्टर के 3 क्लासिफिकेशंस है, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर के ये तीनों पार्ट है, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर टुगेदर, इनको एक साथ बोला जाता है प्रोडक्शन सेक्टर। सो ये मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि हम क्लास 9 से स्टार्ट कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। वो हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, या एक कॉन्सेप्ट जो ठीक से हमको बताया नहीं जाता, या वहाँ बताना ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ बताना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज़ नॉट द मैक्रो लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटायर इकोनॉमी, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वन सेक्टर ऑफ आउट ऑफ 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर। अब आ जाते हैं एक एक सेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। व्हाट इज हाउस होल्ड सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर इट इंक्लूड्स ऑल द कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड मतलब हमारे हाउसेस, तो सारे कंज्यूमर्स कहाँ रहते हैं? हाउसेज में रहते हैं, इसको हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। इससे आप समझ सकते हैं हु आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर दोज हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स वो क्या करते हैं? कंज्यूमर्स कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंज्यूमर्स हैव टू परचेज। परचेज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? मनी। मनी कहाँ से आएगी? जब वो इनकम अर्न करेंगे, तो दे हैव टू अर्न द इनकम। ओके, कंज्यूमर्स इनकम अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है कंज्यूमर्स को? टू अर्न द इनकम कंज्यूमर्स हैव टू वर्क। ओके, मीन्स consumers are those who consume goods and services. To consume they have to purchase, to purchase they have to pay money, to pay money they need money. So since they need money, that is why they try to earn money. To earn money or income, they have to work. And in economics, what is the meaning of work? Work means contribution to production of goods and services. Anyone who is contributing to the production of goods and services, that one is known as worker. Okay, और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कौन करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, फ्यूल, दीज आर द फैक्टर सर्विसेज, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किनके पास होता है? कंज्यूमर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर्स हु आर द ओनर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, टेक्नोलॉजी, फ्यूल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा,
all these factors of production are owned by consumers इनके मालिक होते हैं. During the process of production, these consumers provide their factor services to the producers in their production units में producers को जो consumers होते हैं अपनी factor services, मतलब लैंड ओनर जो होता है, जिस कंज्यूमर के पास लैंड होता है वो अपना लैंड प्रोवाइड करता है, जिसके पास बिल्डिंग होती है वो अपना बिल्डिंग प्रोवाइड करता है, जिस कंज्यूमर के पास मशीन होती है वो मशीन प्रोवाइड करता है, जिसके पास रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल, फ्यूल जिसके पास है वो फ्यूल, जिसके पास टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, जिसके पास लेबर है वो लेबर, जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप है वो एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस प्रोवाइड करता है. ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से दीज कंज्यूमर्स कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर दियर कंट्रीब्यूशन दे आर पेड इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी. मतलब जो लैंड प्रोवाइडर होता है उसको रेंट मिलता है और जो लेबरर्स होते हैं उनको वेजेस और सैलरीज मिलती हैं. एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको प्रॉफिट मिलता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को रॉयल्टी मिलती है. तो इस तरह से इनको इनकम मिलती है. इस इनकम को यूज़ करके परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके कंजप्शन करते हैं, एंड दीज आर नोन एज कंज्यूमर्स. तो यही सारी बातें मैं आपको बता रहा था. हाउस होल्ड सेक्टर इज़ दैट सेक्टर विच includes all the consumers and consumers are the owners of factors of production. जितने भी factors of production हैं उनके ओनर, उनके मालिक कौन है? consumers है. During the process of production these consumers sell their factors of production to the producers. What is production sector? It includes all the producers who are the owners of various factors of production. जो producers होते हैं, जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है इसमें कौन इंक्लूडेड रहते हैं? ऑल द प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? दीज आर द ओनर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन these producers purchase the factors of production from the consumers. मतलब प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से परचेज करता है. प्रोडक्शन सेक्टर परचेजेस various factors of production from household sector during the process of production. Why? Because various factors of production are owned by household sector and various production units are owned by producers. These are the part of production sector. तो production units में factors of production use होते हैं, but these are in household sector. So during the process of production these producers who are included in production sector, who are the owners of various production units, to be used in their production units they purchase various factors of production from the consumers, and for that these producers of production sector pay factor incomes which are earned in form of rent, wage, interest, profit, royalty. That is known as factor income. Your factor incomes are paid to the various individuals of household sector who are known as consumers. So during the process of production consumers provide their factor services to the producers and producers pay their incomes. Producers pay incomes to the various factors of production of household sector who are the owners of who are the consumers, who are known as consumers. Next is government sector. It is an agency which maintains law and order and implements policies and programs for the social welfare of the country. गवर्नमेंट सेक्टर एक एजेंसी है जो किसी भी कंट्री में वेरियस पॉलिसीज प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है, एज वेल एज इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ गवर्नमेंट? सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन. एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, एक और चौथा सेक्टर होता है एक्सटर्नल सेक्टर. इट इज़ दैट सेक्टर विच इज़ एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में लगा रहता है, दैट सेक्टर इज नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर. इतना स्टडी कर लेने के बाद नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स. अब आप पूछ सकते हो कि ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. मीन्स इन दिस चैप्टर अल्टीमेटली वी हैव टू learn that how to calculate or estimate the national income of a country. तो यहाँ पे हम गुड्स को क्यों स्टडी करने जा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट करना है हमको, और वी नो दैट इनकम इक्वल्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जितना गुड्स एंड सर्विसेज का किसी कंट्री में प्रोडक्शन होगा इनकम उतनी ही जनरेट होगी. या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, यदि माइक्रो लेवल की बात करें, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जितने की गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उतने का इनकम जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल सपोज एक प्रोडक्शन यूनिट है, इन दैट प्रोडक्शन यूनिट अ गुड दैट इज एक्स इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, और एक्स की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इज़ ऑफ ₹5,000. मतलब इन अ प्रोडक्शन यूनिट ए, सपोज ए इज़ अ प्रोडक्शन यूनिट इन विच
X is being produced, and this good X has been produced of what value? Of 5,000 rupees. Now if this good X is being sold in market, the owner of this production unit will receive 5,000 rupees. Is this clear? Now means what is the level of production in this production unit of good X? X का कितना का प्रोडक्शन हुआ है 5,000 rupees के गुड का प्रोडक्शन हुआ है. नाउ if the good of 5,000 rupees has been produced in this production unit, if this good is sold in market, 5,000 rupees will be received by this owner of this production unit. And now the owner of this production unit will not keep that 5,000 rupees with himself, because this commodity X has not been produced by this owner alone, but various factors of production have been used by this person. Means he has used land, labor, capital, entrepreneurship, raw material, fuel, technology. So all these factors of production will be paid in form of what? Rent. They will be paid rent, wage, then profit, then interest and royalty for technology, interest for capital, profit for entrepreneurship, wage for labor and rent for land. तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 5,000 रुपीज़. सो इनकम कितने की जनरेट हो जाएगी? टोटल इनकम फ्रॉम दिस प्रोडक्शन 5,000 रुपीज़ की इनकम भी जनरेट हो जाएगी. तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि जितने का प्रोडक्शन उतने का इनकम. तो इनकम यदि किसी कंट्री का नेशनल इनकम पता करना है तो उसका तरीका ये है कि फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. एक कंट्री में कितने का प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का कितने का प्रोडक्शन हुआ है, यदि पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने की इनकम जनरेट हुई है कंट्री में. तो इनकम जितने का होता है उतने का ही प्रोडक्शन, जितने का प्रोडक्शन उतने की इनकम. एंड प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का. तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर द गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और सबकी वैल्यू ऐड करेंगे. इस तरह से हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगा. तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कितने तरह की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसी भी कंट्री में होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. दो तरह की गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स दो तरह की होती है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड देन टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स. ऑल्सो वी हैव टू स्टडी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. सो आई एम स्टार्टिंग विद फाइनल गुड्स. A final goods and B intermediate goods, और A के दो सब पार्ट्स consumer goods and capital goods. What are final goods? These are those goods which have crossed the boundary of production and ready to be used by their final users. ऐसी सारी goods जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में completely finished हो गई हैं और अब जो उनके फाइनल यूज़र्स हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं. मतलब ऐसी गुड्स हैं जिस यूज़ के लिए बनी थी उसमें उसको यूज़ किया जा सकता है. जैसे पेन बनी है लिखने के लिए. नाउ इन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ पेन्स विच हैव बीन completely finished and now these are ready to be used by students. So these units of pen will be known as final goods. Or in a car manufacturing units, as we know that cars are used for ride, for run, चलाने के लिए कार को यूज़ किया जाता है, बैठ के जाने के लिए. सपोज 10 cars have been completely finished, means these cars are in such position that these can be used for ride or for running. So these 10 units we can say that the final these 10 units of car we can say that this is the final output, or this is the final good. इन cars को हम बोल सकते हैं these are the final goods. इसको और अच्छे तरह से समझते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट्स में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो गुड्स होती हैं उनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है और इस तरह से हमको फाइनल गुड मिलती है. तो जितने भी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड थे फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, फाइनल गुड ऑब्टेन करने के लिए, सारे मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं. अब ये जो गुड है कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर आ गई है गोडाउन में और अब इसको मार्केट में बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है.
इस तरह के गुड को फाइनल गुड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल एक कार है, कार के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टायर, इंजन एंड बॉडी. टायर, इंजन एंड बॉडी, ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ in a car manufacturing units have been made and these parts have been assembled together also. बनाने के बाद पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के बाद इनकी असेंबलिंग करी जाती है, सारे पार्ट्स को एक साथ फिक्स कर दिया गया है. अब कार उसके फाइनल यूजर्स यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह की कार को हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड. तो यही लिखा गया है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन. मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी मॉडिफिकेशंस थे, सारे मॉडिफिकेशन करे जा चुके हैं, जो भी चीज़ें करनी थी सब हो चुकी है, एंड नाउ दीज आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स. इनको बोलते हैं फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स 2 तरह की होती हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ये जो 2 तरह की गुड्स बताई गई हैं, ये इनके यूज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन फाइनल गुड्स को करा गया है. कौन यूज़ कर रहा है? Those final goods, these are those goods which are directly used by consumers to satisfy their wants. Any good which is purchased by consumers to be used by that consumer to satisfy his or her want, that good will be known as consumer goods. Means all those goods which are purchased and used directly by consumers to satisfy their wants are known as consumer good. कोई भी ऐसी गुड जिसे कंज्यूमर्स परचेज करके यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड एक फाइनल गुड हो गया. इसके एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल. ऑल ड्यूरेबल गुड्स एंड ऑल नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर परचेज्ड एंड यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स. अब कहेंगे ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? यूज़ के बेसिस पे तो फाइनल गुड्स या यूज़ के बेसिस पे गुड्स हो सकती हैं कंज्यूमर और कैपिटल. ऐसे ही ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल हो सकती हैं. ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स और फॉर सेवरल टाइम्स. दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज एट द मोमेंट दीज गुड्स आर यूज्ड, दीज आर कम्प्लीटली यूज्ड अप, दीज आर एग्जॉस्टेड. ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं, दीज आर, जब इनको यूज़ करते हैं तो ये तुरंत फिनिश्ड हो जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं, ये डिसअपीयर हो जाती हैं, ये एग्जॉस्टेड हो जाती हैं. जैसे ब्रेड सामने है, कंज्यूम कर लिया मतलब खा लिया, ख़त्म. मिल्क इफ़ वी आर यूजिंग इट विल बी फिनिश्ड. बटर इफ़ वी आर ईटिंग, फिनिश्ड. आइसक्रीम यूज़ आफ्टर यूज़ इट विल बी फिनिश्ड. वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्नैक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स को. इसको यूज़ करेंगे ये फिनिश्ड हो जाएंगे. बट दोज गुड्स विच आर नॉट फिनिश्ड इवन आफ्टर यूज, मीन्स दीज कैन बी यूज्ड फॉर मेनी टाइम्स, फॉर मेनी ईयर्स इवन, दीज आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स. लाइक मशीन्स. ड्यूरेबल गुड्स 2 होती हैं, मशीन्स होती हैं और मशीन्स प्लस बिल्डिंग्स. मशीन्स और बिल्डिंग्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स. तो यहाँ पे ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर, सॉरी, ऑल दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो ड्यूरेबल गुड्स 2 एग्जाम्पल होते हैं, मशीन और बिल्डिंग. तो इसमें से केवल मशीन्स को ही कंज्यूमर गुड माना जाता है. मीन्स ऑल दोज मशीन्स. ड्यूरेबल गुड्स 2 तरह की होती हैं, मशीन्स और बिल्डिंग. ठीक है. तो इसमें से जो कंज्यूमर गुड्स होती है उसमें से कौन सी ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर गुड्स की एग्जांपल है? ओनली मशीन्स. मीन्स ऑल दोज मशीन्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, नॉट द बिल्डिंग्स. जो कंज्यूमर्स बिल्डिंग्स को यूज़ करते हैं, कंज्यूमर मीन्स हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड की बिल्डिंग्स होती हैं, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक है. तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब ऑल नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स. इसमें केवल एक एक्सेप्शन है. ड्यूरेबल गुड्स में यहाँ पे केवल हम किसको इंक्लूड करेंगे? मशीन्स. मीन्स machines used by all machines used by consumers are the examples of consumer goods, but not the buildings in spite of being durable good, buildings are not the example of consumer goods. Means even those buildings which are used by consumers, these are not the example of consumer goods, but all the machines and all the non-durable goods which are used by consumers, means all goods except from buildings which are used by consumer goods, these are the example of consumer goods. Buildings
कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल नहीं है. सेकेंड टाइप ऑफ फाइनल गुड्स आर कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स दीज आर दोज ड्यूरेबल गुड्स. यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में ड्यूरेबल आ गया. कंज्यूमर गुड्स के डेफिनेशन में ड्यूरेबल नहीं आया था क्योंकि कंज्यूमर गुड्स मे बी ड्यूरेबल, may be non-durable also, but capital goods are always durable goods. These are those durable goods which are used by producers in their production units for the production of other goods and services. जो भी durable goods consumers use करते हैं except from buildings, एक durable good को छोड़ के buildings को, all those durable goods which are used by consumers, these are the example of कंज्यूमर गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, AC, TV, कार, बाइक, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ़ैन. ये सब ड्यूरेबल गुड्स है क्योंकि यूज़ सेवरल ईयर्स तक कर सकते हैं. और ये ड्यूरेबल गुड्स किस तरह की हैं? दीज आर नॉट द बिल्डिंग्स, दीज आर द मशीन्स. ये सब किसके एग्जाम्पल है? मशीन्स के. ऐसे कैपिटल गुड क्या होती है? दीज आर दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज बाई प्रोड्यूसर्स. मीन्स ऑल ड्यूरेबल गुड्स. यहाँ पे दोनों तरह की ड्यूरेबल गुड्स आएंगी. कौन कौन सी? मशीन्स प्लस बिल्डिंग्स. All the machines and all the buildings which are used by producers in their production units for the production of other goods and services, these are known as capital goods. For example, machines and buildings used by production units. machines और buildings किसके example है? These are the examples of durable goods. तो अब देख सकते हैं capital goods में non durable goods नहीं आती हैं. capital goods are only durable goods. Okay? तो इसको सिंपली यदि आप याद करना चाहते हैं तो याद रखिए कंज्यूमर गुड्स मीन्स ऑल गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स. Whether these are non-durable goods like bread, butter, food grains, snacks, vegetables, etc., or durable goods like machines, refrigerator, AC, TV, car, bike, mobile phone, all the machines which are used by consumers. But one good which is used by consumer and that is not the example of consumer good is building. जो कंज्यूमर्स बिल्डिंग्स को यूज़ करते हैं अपने हाउसेज में, उन बिल्डिंग्स को कंज्यूमर्स यूज़ करने के बावजूद भी दीज आर नॉट द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स. और कैपिटल गुड का मतलब, कैपिटल गुड मीन्स ऐसी सारी ड्यूरेबल गुड्स जो फैक्ट्री में यूज़ होती हैं. कौन कौन सी ड्यूरेबल गुड्स फैक्ट्री में यूज़ होती हैं? दो ही होती हैं. कौन सी? मशीन और बिल्डिंग. अब आपको कि लैंड भी तो होती है, तो लैंड इज़ नॉट अ गुड फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, लैंड इज़ इन इकोनॉमिक्स इट्सेल्फ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग. लैंड को बिल्डिंग का पार्ट मान लिया जाता है. और लैंड एक गुड नहीं है. हम गुड को स्टडी कर रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स मैन्युफैक्चर करते बनाते हैं. लैंड हम थोड़े ना बनाते हैं. दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल थिंग. तो वो हम बना नहीं रहे, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं. तो इसीलिए मशीन और बिल्डिंग, दीज आर द ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है. तो सारे ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी सारी गुड्स कंज्यूमर गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स आर कंज्यूमर गुड्स. एक को छोड़ कर बिल्डिंग. And all durable goods only which are used by producers in their factories, these are the example of capital goods. Now final good के दो पार्ट्स हो गए. अब आ जाते हैं intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are purchased by firm. यहाँ एक बात मैं बता दूँ, जब भी मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा तो या मैं बोलूँगा प्रोड्यूसर और फॉर्म और प्रोडक्शन यूनिट, सबका मतलब एक ही होगा. प्रोड्यूसर बोलूँ या फॉर्म बोलूँ या प्रोडक्शन यूनिट, सब का मीनिंग सेम रहेगा. ठीक है. तो चाहे फॉर्म लिखा रहे कहीं पे या प्रोडक्शन यूनिट लिखा रहे या फैक्ट्री लिखा रहे या प्रोड्यूसर लिखा रहे, मीनिंग सेम थिंग. सो दीज आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय फॉर्म्स. फॉर्म्स मीन्स प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मीन्स प्रोडक्शन यूनिट्स मीन्स फैक्ट्री, फ्रॉम सम अदर फॉर्म्स आइदर फॉर रीसेल और फॉर यूज एज रॉ मटीरियल. ऐसी कोई भी गुड जो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से परचेज करती है, या तो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए या रीसेलिंग करने के लिए, दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स. इज दिस क्लियर? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल हु इज अ कंज्यूमर, ही इज परचेजिंग अ कार. देयर इज एन इंडिविजुअल, that individual is purchasing a car. Means that car will be used by household. It means this car is the example of consumer good the example of final. तो ये कार क्या हो गई? फाइनल गुड. इज दिस क्लियर? सेम कार अभी क्या हो गई? फाइनल गुड. कौन सी फाइनल गुड? कंज्यूमर, क्योंकि उसे कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं. सपोज देयर इज अ कार एंड दैट कार इज परचेज्ड बाय अ फॉर्म.
क्यों परचेज कर रही है? अपने फर्म के एम्प्लॉयज़ को ले आने और ले जाने के लिए. सो दिस कार विल बी यूज्ड in production unit. The car production car is the example of durable good, और इस car is the example of machine also. car is the example of machine. और ये कार यूज़ करी जाएगी प्रोडक्शन यूनिट में. प्रोडक्शन यूनिट में जो भी ड्यूरेबल गुड्स इस्तेमाल करी जाती हैं, ये किसकी एग्जांपल हो जाती है? प्रोडक्शन यूनिट में इस कार को परचेज़ करा गया प्रोडक्शन यूनिट में अपने एम्प्लॉयज़ को या जो भी वर्कर्स हैं उनको ले आने के लिए, ले जाने के लिए. तो अब ये कार किसकी एग्जांपल बन जाएगी? कैपिटल गुड. कैपिटल गुड. ओके. कैपिटल गुड किसका एग्जांपल है? फाइनल. तो यहाँ पे कार, पिछले केस में कार वाज द एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड. विच टाइप ऑफ फाइनल गुड? कंज्यूमर, बिकॉज दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय अ कंज्यूमर. दिस टाइम दिस कार हैज़ बिकम द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड बिकॉज दिस कार being a machine is being used in a production unit, so it will be the example of capital good. Now third example, suppose there is a car, that car is being purchased by a firm. और फॉर्म ये क्या है? एक रिटेल स्टोर है. एक स्टोर है जहाँ पे कार का शोरूम है. ये फॉर्म किस फॉर्म में है? कार के शोरूम के फॉर्म में. एंड दिस फॉर्म इज़ परचेजिंग दिस कार नॉट फॉर इट्स ओन यूज़ बट फॉर सेलिंग पर्पज. मतलब ये शोरूम है, इसने कार परचेज करा, इस कार के शोरूम क्या करेगा? रीसेलिंग करेगा. तो ये कार अब किसकी एग्जांपल बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड की. बिकॉज दिस कार इज़ बिंग परचेज बाई दिस फॉर्म नॉट फॉर इट्स ओन यूज़. यदि फॉर्म में यूज़ करी जाती इस कार को तो कैपिटल गुड हो जाती. यदि हाउस होल्ड में यूज़ करा जाता कार को तो ये कंज्यूमर गुड हो जाती. अब इस कार को यूज़ करा जा रहा है फॉर्म में नहीं बल्कि फॉर्म परचेज करिए रीसेलिंग के लिए, तो ये कार किसकी एग्जांपल हो जाएगी? कैपिटल गुड की. अब एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क का. सपोज मिल्क इज़ बिंग परचेज्ड बाय हाउस होल्ड. सेल्फ यूज़ करने के लिए, तो ये मिल्क इसका एग्जांपल हो जाएगा कंज्यूमर गुड का. बिकॉज एनीथिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड, परचेज्ड एंड यूज्ड बाय हाउस होल्ड इज़ द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड. सो मिल्क is a non-durable good and it is being purchased by household sector, means by a consumer for self use. तो ये consumer good का example हो गया. Suppose there is milk and this milk is being purchased by milkman from the farmer. milkman ने purchase करा क्या करने के लिए? सेल करने के लिए. मिल्क को सेल्फ यूज़ नहीं करेगा, इसको क्या करेगा? वो परचेज़ करके इसकी सेलिंग करेगा. तो ये मिल्क मैन इस मिल्क को परचेज़ कर रहा है फॉर रीसेलिंग के लिए, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल हो जाएगा. या सपोज मिल्क परचेज़ करा गया, किसने परचेज़ करा? आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने के लिए. तो इस मिल्क को आइसक्रीम फैक्ट्री में इस्तेमाल करा जाएगा किस लिए? रॉ मटेरियल के फॉर्म में. तो कोई भी प्रोडक्ट यदि रीसेलिंग के लिए या रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करने के लिए किसी फॉर्म में परचेज़ करा जाता है तो वो एग्जांपल हो जाता है इंटरमीडिएट गुड का. अब मिल्क कैपिटल गुड का एग्जांपल नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? कार वाज द एग्जांपल ऑफ, कार में भी द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड इफ़ इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स में दोनों गुड्स आती हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल. तो कार ड्यूरेबल गुड हो गया, तो कंज्यूमर गुड में आ गया. और कार if it is being used in a production unit, the car being a durable good because it will become the example of capital good, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट में यूज़ हो रही है और ड्यूरेबल गुड है. इफ़ कार बीइंग परचेज बाय अ फॉर्म फॉर रीसेल, तो ये इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल हो जाएगा. अब यदि मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड. तो कंज्यूमर गुड का एग्जांपल नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं. तो मिल्क इफ़ इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अ कंज्यूमर being a non-durable good, it will be the example of consumer good. But milk is a non-durable good, that is why it cannot be the example of capital good, because capital goods are always durable good. तो milk capital good का example नहीं हो सकता, but milk may be the example of intermediate good if it is being used for resale or for used in a production unit. तो यहाँ पे intermediate good आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से. These are those goods which are purchased by firms from some other firms either for resale or for use as raw material. ऐसी सारी goods जो कोई फर्म्स परचेज करती हैं सेल्फ यूज़ के लिए नहीं, या तो उसकी रीसेलिंग कर देने के लिए या रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करने के लिए, इस तरह की गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय शॉप्स फॉर रीसेल.
जो शॉप्स फैक्ट्रीज से गुड्स को परचेज करती हैं, चाहे ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल, रीसेलिंग के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल बन जाएगा, लाइक ब्रेड, बटर, मिल्क, मोबाइल फ़ोन। तो ये क्या हो गई, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। मोबाइल फ़ोन, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, कार, बाइक, दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। तो ये सारी अपने सेल्फ यूज़ के लिए नहीं परचेज करे जा रहे हैं, रीसेलिंग के पर्पज़ के लिए परचेज करे जा रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। सेम वे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय फॉर्म्स, ये सही कर लीजिएगा, फॉर्म है, फॉर्म नहीं है, परचेज बाय फॉर्म्स टू यूज़ एज रॉ मटेरियल। ऐसे सारे ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो फॉर्म्स परचेज कर रही हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करने के लिए, लाइक ब्रेड, बटर, मिल्क, शुगर केन, ऑयल, ग्रेन, forest resource, natural gas, coal, these are non-durable goods. And minerals are also used in production units as raw material, and minerals are non-durable goods. Mineral means iron ore, कॉपर, टिन, गोल्ड। ये ऐसा नहीं है कि इसको गोल्ड को यूज़ कर लेंगे, कॉपर को यूज़ कर लेंगे तो डिसअपियर हो जाएगा, यूज़ सेवरल ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मिनरल्स, इस तरह से मिनरल्स एग्जांपल हो गए किसके, ड्यूरेबल गुड्स के। तो ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, लेकिन इन ड्यूरेबल गुड्स को फाइनल गुड्स के रूप में इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करा जा रहा है प्रोडक्शन यूनिट्स में। दैट इज़ वाई दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, and these are non-durable goods which are being used as raw material in production units. That is why these are also the example of intermediate goods. तो दो तरह की गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि नो गुड इज़ ऑलवेज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। किसी भी गुड को हमेशा आप नहीं बोल सकते कि ये फाइनल गुड है, या हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ये इंटरमीडिएट गुड है। सेम गुड इन वन यूज़ मे बी फाइनल गुड, बट इन अनदर यूज़ दैट गुड मे बी एन इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल, एक गुड जो है, कोई भी कमोडिटी एक यूज़ में यदि फाइनल है तो दूसरे यूज़ में सेम कमोडिटी इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल हो सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ द एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। यदि किसी हाउस होल्ड ने किसी फार्मर से मिल्क सेल्फ यूज़ के लिए परचेज़ करा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, कंज्यूमर गुड की। कौन सी कंज्यूमर गुड किसका एग्जाम्पल है, फाइनल गुड की। तो यहाँ वाला मिल्क किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइनल गुड का। बट मिल्क परचेज्ड बाय एन आइसक्रीम फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइसक्रीम इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। लेकिन वही मिल्क यदि कोई आइसक्रीम फैक्ट्री परचेज कर रही है, तो मिल्क को आइसक्रीम फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल करा जाएगा। तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में जब इस्तेमाल करा जाता है तो वो मिल्क किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड का। एक और एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय हाउस होल्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड। एक हाउस होल्ड ने रेफ्रिजरेटर परचेज करा, तो हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, तो रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर गुड का एग्जांपल हो गया। कंज्यूमर गुड किसकी एग्जांपल होती है, फाइनल गुड की। तो ये रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर फाइनल गुड का एग्जांपल हो गया। बट रेफ्रिजरेटर परचेज बाय ए शॉप फॉर सेल इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। लेकिन एक शोरूम है रेफ्रिजरेटर का, उस शोरूम ने रेफ्रिजरेटर को परचेज करा, तो वो सेल्फ यूज़ के लिए नहीं, रीसेल के पर्पज़ के लिए परचेज कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर विल बी द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। ओके, अब यही रेफ्रिजरेटर यदि किसी प्रोडक्शन यूनिट ने परचेज़ करके प्रोडक्शन यूनिट में यूज़ किया होता, बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स में कूलिंग पर्पज़ के लिए रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करे जाते हैं, तो उस केस में ये किसका एग्जांपल हो जाता है, कैपिटल गुड का। और कौन सी कैपिटल गुड किसके एग्जांपल, फाइनल गुड। तो उस केस में रेफ्रिजरेटर किसका एग्जांपल हो जाता, फाइनल कंज्यूमर गुड। मतलब फाइनल गुड्स आर टू टाइप्स, फाइनल गुड्स दो तरह की होती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल कैपिटल गुड्स। तो यदि कोई गुड एक यूज़ में फाइनल कंज्यूमर गुड है, दूसरे में वो क्या हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड। या एक यूज़ में फाइनल कैपिटल गुड है तो दूसरे यूज़ में क्या हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड हो सकती है। अब इस एग्ज़ाम्पल को मैं आपको बताऊं उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस इन दोनों का डेफिनेशन हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय सम फर्म्स फ्रॉम सम अदर फर्म्स आइदर फॉर रीसेल और फॉर use as raw material, whereas final goods are those goods which have crossed the boundary of production and ready to be used by the final users. And second difference दोनों में होता है final और intermediate goods में, no value addition in final goods. final goods में value addition नहीं होता है, there is value addition in intermediate goods. second एक और difference, एक ही साथ दोनों difference देख लेते हैं। there is a these are included in national income
जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, एज वी नो दैट इनकम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो दो तरह की गुड्स मैंने बताया, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है इसको यहाँ से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद एग्जाम्पल लेकर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को आपको शो करा गया, यहाँ पे दिखाया गया है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है एग्जाम्पल? सबसे पहले क्या है, फार्मर प्रोड्यूसेस वीट एंड सेल टू मिल ओनर। एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस करा और उस वीट को उसने सेल कर दिया एक मिल, फ्लोर मिल है, आटा बनाने की मिल है, उस मिल में उसने इस वीट को सेल कर दिया कितने में, 1000 रुपीज़ में। अब इस फ्लोर मिल में दिस वीट इज़ बीइंग यूज्ड, तो वीट जो इसको यूज़ कर रहा है फ्लोर मिल में, तो ये जो वीट है इस फ्लोर मिल में रॉ मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। मिल ओनर प्रोड्यूसेस वीट फ्लोर, इस फ्लोर मिल में वीट फ्लोर प्रोड्यूस करा जा रहा है, मतलब आटा बनाया जा रहा है। ओके, तो ये इस फ्लोर मिल में आटा बनाने के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या इस्तेमाल किया गया, वीट। तो यहाँ पे वीट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस केस में, इस फ्लोर मिल में वीट की जहाँ तक बात करते हैं, ये कौन सी गुड है, वीट, इंटरमीडिएट गुड। कौन सी गुड हो गया, दिस इज इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो वीट किसका हो गया एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट गुड। अब इस फ्लोर मिल ने फ्लोर का प्रोडक्शन करा, कितने का फ्लोर का प्रोडक्शन करा, 1500 का। और ये जो वीट फ्लोर है, दिस इज़ बीइंग सोल्ड नॉट टू कंज्यूमर्स बट दिस इज़ बीइंग सोल्ड टू बेकर, एक बेकरी को बेचा जा रहा है इसको। इस बेकरी में क्या बनेगा, ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, फ्लोर का इस्तेमाल होगा, वीट फ्लोर। तो यहाँ पे वीट फ्लोर किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल हो गया वीट फ्लोर। and in this bakery with the help of this wheat flour which is being used as raw material means this is a kind of intermediate good, इससे फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ब्रेड, बिकॉज दिस ब्रेड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कंजम्पशन। जो कंज्यूमर्स हैं इस ब्रेड को कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ब्रेड यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइनल गुड का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। ओके, तो इस चीज़ को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिस वीट इन दिस फ्लोर मिल, दिस वीट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। यहाँ पे क्या है, वीट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। यहाँ पे फ्लोर, आटा इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, और ब्रेड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड, बिकॉज दिस ब्रेड, दिस वीट इज़ being purchased by flour mill to use as raw material, and this flour mill is making flour, and this flour is not being used by consumers for the consumption purpose, but this is being used in a bakery for making bread. So this flour is being used as a raw material in this bakery, so this flour is the example for this bakery is the example of intermediate good. And from this with the help of this flour in this bakery, bread is being made and this is being sold to consumers and who are consuming this finally. So bread is the final good. Now as I told you that in case of final goods there is no value addition, whereas in case of intermediate goods there is value addition. जब भी intermediate goods होती हैं तो उसमें कुछ value add होती है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, वीट जब फार्मर ने बेचा इस फ्लोर मिल को, जब फार्मर के पास वीट था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो। जब फार्मर ने अपने पास वीट को रखा हुआ था तो उसके पास वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो। फिर दिस वीट वाज सोल्ड टू दिस फ्लोर मिल, तो फ्लोर मिल में वीट किसका एग्जाम्पल अब बन गया, वीट क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। इसको मैं IG से दिखा रहा हूँ, वीट किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटरमीडिएट गुड का। तो इंटरमीडिएट गुड जब ये वीट बन रहा है तो इसमें कितने की वैल्यू ऐड हो गई, +1000, क्योंकि अब ये वीट की वैल्यू, व्हेन दिस वीट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल दिस इन दिस फ्लोर मिल, इसमें वैल्यू एडिशन कितने का हो जा रहा है, 1000 रुपीज़ का।
तो देख सकते हैं जब इंटरमीडिएट गुड के फॉर्म में यूज़ करा जा रहा है तो इसमें वैल्यू एडिशन 1000 रुपीज़ का हो गया। अब 1000 रुपीज़ का ये फ्लोर वेट जो पहले 0 रुपीज़ का था जब फार्मर के पास था, नाउ इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ 1000 रुपीज़। अब ये 1000 रुपीज़ का फ्लोर यूज़ करा जा रहा है बेकरी में, ये बेकर यूज़ करेगा ब्रेड बनाने के लिए। तो अगेन ये इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल हो गया, इंटरमीडिएट गुड का। तो वीट कितने का इस्तेमाल होगा इसमें, wheat is in this bakery wheat has been converted into the flour of flour। तो जब फ्लोर में कन्वर्ट करा गया तो और फ्लोर को यूज़ करा जा रहा है इस बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए। तो ये फ्लोर किसका एग्जांपल हो गया, इंटरमीडिएट गुड का। तो जब फ्लोर में कन्वर्ट करा जा रहा है वीट को तो इसमें वैल्यू कितने की ऐड हो जा रही है, पहले wheat is being used, wheat of 1000 rupees is being used in this flour mill and now it is being converted into flour of 1500। तो इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू कितने की ऐड हो गई, 500 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हो गया। इज दिस क्लियर नाउ। अब क्या हो रहा है, दिस फ्लोर ऑफ 1500 रुपीज़, ये फ्लोर जो है आटा है 1500 रुपीज़ का हो चुका है और अब इसको कन्वर्ट करा जा रहा है इंटरमीडिएट गुड के रूप में, इसको यूज़ करा जा रहा है इस फ्लोर मिल में। एंड नाउ इट इज़ बीइंग इस बेकरी में, नाउ इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू ब्रेड। तो ये 1500 रुपीज़ का जो फ्लोर है इसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया, कितने के ब्रेड में, 2000 रुपीज़ के। तो अब इसमें कितना वैल्यू ऐड कर दिया गया, 1500 का जो फ्लोर है वो 2000 रुपीज़ के ब्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया, पहले से इसका वैल्यू था 1500 और इसमें वैल्यू कितना ऐड कर दिया गया, 500। तो यहाँ वैल्यू एडिशन हो गया 1000, यहाँ 500, यहाँ 500, तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 2000 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन। अब ये ब्रेड पहुंच गया किसके पास, कंज्यूमर्स के पास। अब कंज्यूमर्स इसे कंज्यूम कर लेंगे तो कोई वैल्यू एडिशन होगा इसमें, नो। वैल्यू एडिशन तब होता है जब ये कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर को ये 2100 में बेच देता तो हम बोलते हैं कि देयर इज़ वैल्यू एडिशन ऑफ 100 रुपीज़। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है जब उसको हम परचेज़ करते हैं क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए या रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करने के लिए, तभी उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री है, आइसक्रीम की फैक्ट्री, उसमें मिल्क उसने परचेज़ करा 1000 रुपीज़ का और मिल्क 1000 रुपीज़ का मिल्क यूज़ करके इसने आइसक्रीम बनाया। तो आइसक्रीम 1000 में तो बेचेगा नहीं, बेकरी आइसक्रीम कितने में बेचेगा, 1200 रुपीज़ में। तो क्या हो रहा है इसमें, 1000 रुपीज़ का ये जो मिल्क है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू आइसक्रीम ऑफ 1200 रुपीज़। तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे कितने का हो रहा है, 200 रुपीज़ का। 1000 में ख़रीदा मिल्क को, आइसक्रीम में कितने का कन्वर्ट कर दिया, 1200 रुपीज़ की। तो वैल्यू एडिशन कितने का हो गया, 200 रुपीज़ का। तो वैल्यू एडिशन किस में हुआ, आइसक्रीम में हुआ या मिल्क में हुआ, मिल्क में। मिल्क इज़ इंटरमीडिएट गुड। अब ये आइसक्रीम कौन परचेज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर्स, और इसको परचेज़ करके कंज्यूमर्स खा ले रहे हैं। तो इसमें अब कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होगा। लेकिन इफ़ दिस आइसक्रीम इज़ बीइंग परचेज्ड बाय, इस आइसक्रीम को सपोज़ कंज्यूमर्स ने नहीं परचेज़ करके एक शॉप वाले ने ख़रीदा आइसक्रीम बेचने के लिए, तो अब ये बेचेगा किसको, कंज्यूमर्स को। तो ये 1200 में परचेज़ करके 1200 में तो बेचेगा नहीं, प्रॉफिट के लिए इसको सपोज़ वो 1300 में कंज्यूमर्स को बेचता है। तो अब यहाँ पे दिस आइसक्रीम इज़ बीइंग परचेज बाय दिस शॉपकीपर नॉट फॉर सेल्फ यूज़ बट फॉर रीसेल। और कोई चीज़ जो रीसेल के लिए परचेज़ करी जाती है, दैट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। तो ये आइसक्रीम जो शॉप परचेज़ कर रहा है ये अब किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटरमीडिएट गुड का। तो जब ये इंटरमीडिएट गुड है इसको रीसेल करा जा रहा है तो 1200 की गुड 1300 में बेचा जा रहा है, तो वैल्यू एडिशन कितने का हो जा रहा है, 100 में, 100 का। नाउ दिस आइसक्रीम इज़ बीइंग परचेज बाय कंज्यूमर्स इन 1300 में परचेज़ करा और इसको ये लोग क्या कंज्यूम कर लेंगे तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो ये कंज्यूम कर लिया गया, मतलब फाइनली यूजर्स यूज़ कर लिए। तो अब ये आइसक्रीम जो कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। तो जब भी कोई गुड फाइनल गुड है तो इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो फाइनल गुड्स के केस में नो वैल्यू एडिशन, इंटरमीडिएट गुड्स के केस में देयर इज़ वैल्यू एडिशन। एक और बात आपको बहुत ही जानना जरूरी है, फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड क्या है, यहाँ पे जो वीट है वो इंटरमीडिएट गुड है, 1000 रुपीज़ का वीट इंटरमीडिएट गुड, 1500 का फ्लोर इंटरमीडिएट गुड, 2000 रुपीज़ का ये जो ब्रेड है ये क्या है, फाइनल गुड। तो ये ब्रेड की वैल्यू इंक्लूड होगी। यहाँ पे जो फ्लोर है वीट फ्लोर 1500 का ये, और जो वीट है 1000 का, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसा क्यों होगा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले
फार्मर ने इस फ्लोर मिल को वीट बेचा कितने में, 1000 रुपीज़ में। इसने फ्लोर बनाया और इस बेकरी को बेचा कितने में, 1500 में। इस बेकरी ने इसको कंज्यूमर्स को कितने में बेचा, 2000 रुपीज़। तो अब ये 2000 रुपीज़ किसके पास वापस आ जाएगा, बेकर के पास, जो बेकरी का ओनर है। कंज्यूमर्स ने पे किया 2000 रुपीज़। ये 2000 रुपीज़ में से 500 ही अपने पास रखेगा, बिकॉज ही हैज़ परचेज्ड फॉर मेकिंग दिस ब्रेड, ही हैज़ परचेज द फ्लोर फ्रॉम दिस फ्लोर मिल ऑफ 1500। तो ये 1500 इसको वापस कर देना होगा किसके पास, 2000 में से 500 अपने पास रखेगा, 1500 वापस कर देगा किसके पास, बेकरी के पास। ये बेकरी ने जो करा है, उसने वीट परचेज करा है फ्रॉम फार्मर कितने में, 1000 में। तो इसमें से 1000 निकल जाएगा, इसके पास भी केवल कितना बच जाएगा अब, 500। अब 1000 कहाँ पे चला जाएगा, फार्मर के पास। ओके, तो अब क्या होगा, इनकम कितने की जनरेट हुई, एक्चुअली इनकम कितने की जनरेट हुई है, 500 रह गया बेकर के पास, 500 रह गया मिल ओनर के पास, और 1000 फार्मर के पास। तो टोटल इनकम कितने की जनरेट हुई, 2000 की। ओके, जो कि किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। यदि हम सारे गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे तो नेशनल इनकम कितनी दिखेगी, 1000 प्लस 1500 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 4500 दिखेगी नेशनल इनकम। बट एक्चुअली नेशनल इनकम इज़ ओनली 2000। ये पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, टोटल इनकम कितने की जनरेट हुई, 2000 रुपीज़ की। लेकिन यदि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेंगे तो नेशनल इनकम ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जा रही है, 1000 और 1500 की डबल काउंटिंग हो जाएगी। बिकॉज दिस 1000 रुपीज़ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 1500 एंड दिस 1500 रुपीज़ इज़ इंक्लूडेड इन दिस 2000 रुपीज़। ये 2000 रुपीज़ जो है, जो किसके पास है, फाइनल गुड्स के पास है। फाइनल गुड्स की वैल्यू जो 2000 रुपीज़ है, इस 2000 रुपीज़ में एक्चुअली 1500 वैल्यू किसकी है, ब्रेड की, सॉरी इसमें से 500 वैल्यू किसकी है, यहाँ वैल्यू एडिशन 500 क्या हुआ था, तो 500 इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड 1000 इज़ द वैल्यू ऑफ वीट एंड 500 वैल्यू ऐड करा गया था एक्स्ट्रा यहाँ पे जब ब्रेड बना था ये। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, 2000 रुपीज़ का। तो जितने का वैल्यू एडिशन हुआ उतना ही फाइनल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने का वैल्यू एडिशन होता जाएगा उतनी ही फाइनल वैल्यू हो जाएगी। और यदि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, मतलब 1000 को भी इंक्लूड कर लेंगे, 1500 को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो इसकी काउंटिंग कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। कैसे, एक बार यहाँ इंक्लूड कर ले रहे हैं 1000 और यहाँ पे इंक्लूड कर लिया 1500 और यहाँ पे इंक्लूड कर लिया 2000। लेकिन ये 1000 एंड 1500 दीज हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन दिस 2000, ये 2000 में ही इंक्लूडेड है। ये 1000 का जो 1500 का पेमेंट होगा ये कहाँ से होगा, 2000 से ही निकल कर जाएगा ये। तो ये 1500 इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस 2000 रुपीज़, और इस 1500 में 1000 रुपीज़ इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो यदि 1500 को इंक्लूड करेंगे और 1000 को इंक्लूड करेंगे तो ये 1500 1000 रुपीज़ की काउंटिंग क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। डबल काउंटिंग का मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते समय किसी भी प्रोडक्ट की यदि एक से ज़्यादा बार हम काउंटिंग कर लेते हैं, सॉरी किसी वैल्यू को एक से ज़्यादा बार इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। ठीक वैसे ही जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है और ये मिल्क इसने सेल करा आइसक्रीम फैक्ट्री को कितने में, 1000 में। और आइसक्रीम फैक्ट्री ने आइसक्रीम बना के कंज्यूमर्स को बेचा, आइसक्रीम बना के बेचा सपोज 1200 में। तो 1200 किसके पास आ जाएगा, आइसक्रीम फैक्ट्री के पास। इस 1200 में से 1000 रुपीज़ किसके पास चला जाएगा पेमेंट के फॉर्म में, 1000 रुपीज़ फार्मर को। आइसक्रीम फैक्ट्री के ओनर के पास कितना बचेगा, 200 रुपीज़। तो टोटल इनकम कितने की जनरेट हुई, 1200 की, जो कि किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड दैट इज़ 1200 रुपीज़। अब यदि इसमें हम मिल्क की वैल्यू को, जो विच इज़ इंटरमीडिएट गुड, ये भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये 1000 दो बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि 1000 तो ऑलरेडी 1200 में इंक्लूडेड है। तो एक बार इस 1200 में और एक बार 1000 सेपरेटली, ये दो बार काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी क्रिएट हो जाएगी, डबल काउंटिंग की। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। तो ये डिफरेंस लिखा गया, पहला डेफिनेशन, नो वैल्यू एडिशन इन केस ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू एडिशन इन केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ओनली फाइनल गुड्स दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और दोनों के एग्जाम्पल्स जो मैं ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में आपको देख चुका हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's video. Thank you.